It's a superpower that shapes dreams, secures futures, and builds legacies. Imagine equipping young minds today with the wisdom to turn their aspirations into achievements and their resources into opportunities. Isn't that a transformative thought? Good morning, everybody. I'm Alok Joshi, and I'm thrilled to welcome you all to this 6th edition of Orange City Literature Festival, organized by Asia Knowledge Foundation and powered by Raisoni Education. Today, we take a fascinating turn towards a topic that affects every individual and society at large: financial literacy. Designed especially for the inquisitive minds of 7th, 9th, and 10th standard students, the session will focus on empowering them with essential money skills. So let me quickly introduce you to the stellar panel of speakers who will guide us through this enriching workshop. The first we have CA Ms. Premlata Daga. Honored as the star woman of WIRC on International Women's Day 2024, Ms. Daga is a chartered accountant by profession and an educator by passion. She is a partner in GTA and Co LLP and a registered valuer for securities and asset class with IBBI. Ms. Daga started her career as an educator at a young age of 23 with National Academy of Direct Taxes, NADT. She holds the honor of being one of the youngest visiting faculty at NADT and so far has taught financial accounting to 10th batches of IRS officers. She has conducted more than 500 plus sessions on financial investigation. The second eminent speaker we have is CA Pooja Lavati. Having 6 years of expertise in financial guidance, auditing, and tax consultancy, Ms. Lavati brings a perfect blend of teaching, technical prowess, and a passion for education. She has mentored students across reputed institutions, offering invaluable insights into the world of finance. Her dedication to sharing knowledge ensures a lasting impact on every learner she encounters. And the next guest we have speaker CA Aman Jain, a chartered accountant and company secretary. CA Aman is also an entrepreneur committed to making a difference. As a co-founder of Investia Financial Advisor and Wash My Ride, Aman combines his financial acumen with environmental responsibility. A seasoned portfolio manager and equity researcher, he also played a key role in spreading financial literacy among IRS officers, ICAI members, and college students. His innovative approach to blending education and entrepreneurship is truly inspiring. So, ladies and gentlemen, and boys and girls, fasten your intellectual seatbelts. And without further ado, I hand over the stage to our distinguished speakers. The stage is over to you, the panelists. So, very good morning. Thank you so much, sir, for setting up the stage and our brief introduction. So, before we start, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी schools हैं? सामने रायसोनी स्कूल, पीछे नारायण विद्यालय. This side, any other school is there? So we have 2 schools in the room. Yes, and everybody is here from 7 to 10 standard. सब 7 से 10 स्टैंडर्ड के हैं. ओके, सो हम फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप ले रहे हैं. हम समझना चाहते हैं अबाउट फाइनेंस. आप लोग को कुछ मालूम है फाइनेंस के बारे में? यस. क्या आप लोग का बैंक अकाउंट है? ओके, सो वी विल ग्रेजुअली डेवलप अपॉन दिस एंड हम आपको आज सारी बातें बताएंगे जो एज अ स्टूडेंट बहुत रेलेवेंट है. बिफोर वी स्टार्ट, आपको ये पता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस, एवरीबडी फील्स कि आप बच्चे हैं फिर भी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी मालूम होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है? यस, एवरीबडी इज विद मी हियर? यस. सो वी हैव अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी. सो कैन वी जस्ट हैव दीज लाइट्स ऑफ? एनीबडी वॉलंटियर हियर? ये वाली लाइट्स बंद कर दो सो दैट द पीपीटी इज विजिबल. आप लोग के पास में एक बुक और पेन है? आप लोग निकाल लीजिए. यस, इट्स अ वर्कशॉप. हम आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाले हैं, हम एक एक्टिविटी के थ्रू कुछ चीजें सीखने वाले हैं. सो वी हैव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन हियर.
वी रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज अपने नोटबुक और पेन्स निकाल लीजिए एंड जैसे डायरेक्शंस मिलेंगे उस हिसाब से आपको आगे प्रोसीड करना है. ओके, सो एवरीबडी इज रेडी विद द पेपर एंड पेन? यस, ऑल सेट. तो अभी हम एक छोटी एक्सरसाइज करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे. तो इसको द स्क्रीन इज विजिबल, सबको दिख रहा है? इधर साइड में अगर नहीं दिख रहा होगा तो यू कैन सेफली शिफ्ट टू दिस कॉलम. शैल वी स्टार्ट? यस. नेक्स्ट, ये एक छोटा सा टेबल आपको बनाना है. हम एक फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सरसाइज करेंगे जहां पे एवरी मंथ आपको कुछ पैसे मिलेंगे और कुछ ऑप्शंस मिलेंगे उनको स्पेंड करने के. ओके, सबसे पहले आप ये टेबल बना लो. इस टेबल में ओपनिंग है एक कॉलम इंक्रीज, मतलब जब भी आपको पैसे मिलेंगे वो उस कॉलम में जाएंगे, और जब भी आप पैसा खर्चा करेंगे तो हम डिक्रीज के कॉलम में डालेंगे. ओके, आई रिपीट अगेन, हमें 4 कॉलम बनाने हैं. इनफैक्ट आप एक और कॉलम ऐड कर दो मंथ का, एंड क्लोजिंग के बाद एक कॉलम ऐड कर दो कि आपने उस पैसों का क्या किया. ठीक है, तो हमारे पास में एक मंथ का कॉलम है कि हमें अप्रैल मतलब मंथ 1 में कितने पैसे मिले, उसको हम एडिशन वाले कॉलम में डालेंगे, इंक्रीज में. डिक्रीज में डालेंगे अगर हमने उसमें से खर्चा कर दिए, और बाद में अगर हमने खर्चा नहीं किए तो हमारे पास में कितने पैसे बच गए. क्लियर? समझा हमें क्या करना है? तो ये फॉर्मेट सब लोग बना लेंगे. अगर आपको फॉर्मेट समझने में कुछ डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, वी कैन कम एंड एक्सप्लेन. हमें एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है जिसमें जो पैसे हमें मिले वो इंक्रीज में आएंगे, जो पैसे हमने खर्चा कर दिए वो डिक्रीज में आएंगे, और आपके पास अगर आपने खर्चा नहीं किए तो आपके पास जो पैसे बच गए वो क्लोजिंग बैलेंस में आएंगे, और जो पैसे आपके बच गए वो नेक्स्ट टाइम में ओपनिंग में जुड़ जाएंगे. अगर आपने कुछ बचाया तो, और सब खर्चा कर दिया तो 0. क्लियर? आर वी रेडी विद द फॉर्मेट? शैल वी मूव अहेड? ओके, सो नाउ वी हैव मंथ 1. ये है फर्स्ट मंथ. फर्स्ट मंथ में आपको मिल रहे हैं 5,000 रुपीज. ओके, 5,000 रुपए आपको मिलेंगे. एंड आपको करना क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन है डिनर विद फ्रेंड्स. आपके बहुत क्लोज स्कूल फ्रेंड्स के साथ आप डिनर पे जाना चाहते हैं, मतलब एक आउटिंग है. सपोज में पेंच सबने देखा है, तो हर बच्चा पूल कर रहा है 5-5 हजार रुपए, एंड वो वहां पे जाके एक पार्टी करने वाला है. आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लो और 5,000 रुपए खर्चा कर दो. दूसरा ऑप्शन, आप एक ब्रांडेड शूज खरीद लो. आपके पास शूज है लेकिन एक बहुत सुंदर ब्रांडेड शूज है जो आपको बहुत पसंद आ गए और आप वो खरीदना चाहते हैं. ये दूसरा ऑप्शन है. तीसरा ऑप्शन है आप म्यूचुअल फंड खरीद लो. आपको म्यूचुअल फंड पता है? सुना है? तो तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो. और चौथा ऑप्शन है कि आप कुछ नहीं करोगे, आप वो पैसे रखे रहोगे. क्लियर? लेकिन चारों में से आपको एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. आई रिपीट अगेन, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छी पार्टी कर लो, बेंच में जाके आपके सब फ्रेंड्स जा रहे हैं, आप भी जाना चाहते हो, वो एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है आप एक ब्रांडेड शूज खरीद लो जो आप बहुत दिन से खरीदना चाहते थे, 5,000 रुपए के हैं. तीसरा ऑप्शन है आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दो, और चौथा ऑप्शन है आप कुछ मत करो, 5,000 रुपए रहने दो. आप सब अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं. आपने जो भी किया है, अगर आपने खर्चा किया है तो डिक्रीज वाले कॉलम में 5,000 माइनस हो जाएगा, और बाजू में आप लिख दो कि आपने उस पैसों का क्या किया. आपने शूज लिए, फ्रेंड्स के साथ पार्टी की, म्यूचुअल फंड खरीदा, या आपने कुछ नहीं किया. क्लियर? आपको कुछ ना करना है. अभी हम लोग नोटबुक चेक करेंगे आपकी. लिखो ना, मतलब एग्जाम नहीं है, यू हैव टू राइट. आई होप यू अंडरस्टूड. या देयर इज अ डाउट? हाँ, वो जो आपने क्लोजिंग है ना उसके बाजू में आप लिख दो. जो लास्ट कॉलम है ना, हाँ यहाँ पे कॉलम में लिख दो. ठीक है, कुछ करना नहीं, आप बस वहाँ पे लिख दो 5,000 माइनस, और लास्ट कॉलम में लिख दो म्यूचुअल फंड. ओके, अच्छा वेट ना, तो फिर आपका तो ये क्लोजिंग अमाउंट है ना, यहाँ पे 5,000. अगर आपने वेट ऑप्शन एक्सरसाइज किया
तो आपके एडिशन के कॉलम में आएगा 5000, डिलीशन में 0 आएगा और क्लोजिंग में आ जाएगा 5000, क्योंकि आपके पास वो पैसे बच गए। ठीक है, अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया है तो आपके क्लोजिंग में आएगा 0, एडिशन में आएगा 5000, डिलीशन में आएगा वापस -5000 एंड आप एक कॉलम में लिख दो आपने पैसों का क्या किया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया। ठीक है, आप खर्चा करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप है इसीलिए हमें म्यूचुअल फंड खरीदना ऐसा मत सोचो। हाँ, हमें ये समझना है कि हमारी कुछ इच्छा भी है, तो आपको अगर मन करता है ब्रांडेड शूज खरीदने का आप खरीदो, आपको मन करता है आप म्यूचुअल फंड लो तो लो। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? जो आप नॉर्मली करते, यहाँ बैठे हो इसलिए कर रहे हो ऐसा मत सोचो। आपको नॉर्मली कोई 5000 रुपए देगा तो आप क्या करोगे, आप खर्चा कर दोगे? कितने लोग खर्चा कर देंगे? नहीं खर्चा करेंगे, रखे रहेंगे। जो खर्चा कर देंगे हाँ खर्चा कर देंगे हम, ठीक है, जो करना है आप करो, आपकी इच्छा, आपके पैसे। ठीक है, ऑल डन फॉर द फर्स्ट स्लाइड, शैल वी मूव अहेड? यस, अब नेक्स्ट स्लाइड। दूसरे महीने आपके पास मिलते हैं 2500 रुपीज, 2500 रुपए आपको मिलने वाले हैं। फिर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। 2500 में या तो आप जैकेट खरीद लो, ठंडी का सीजन है आपके पास जैकेट नहीं, आप जैकेट खरीद लो। दूसरा ऑप्शन है कि वो जो ब्रांडेड शूज आपने फर्स्ट स्लाइड में देखे थे ना, अब वो विंटर सीजन के ऑफर सेल में 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है 2500 में। तो तीसरा ऑप्शन है आप फिर से म्यूचुअल फंड खरीद लो, लेकिन फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट सबको पता है, स्टॉक मार्केट बेसिक सबको पता है ना, तो शेयर मार्केट में एक ऐसा शेयर्स है जो 1 महीने के अंदर डबल हो सकता है। मतलब आज आप 2 रुपए का खरीदो, अगले महीने वो 4 रुपए हो सकता है। क्लियर? चारों ऑप्शन समझे? एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड ऑल द 4 ऑप्शंस? आई रिपीट अगेन। पहला ऑप्शन है 2500 रुपए में आप ठंडी के लिए एक जैकेट खरीद लो जो आपके पास अभी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वो ब्रांडेड शूज जो आप खरीदना चाहते थे पहली स्लाइड में, लेकिन 5000 के होके आपने शायद नहीं खरीदा होगा, अब वो 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं 2500 में, आप वो खरीद सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। और फोर्थ ऑप्शन है कि शेयर मार्केट में एक ऐसा शेयर है जो 2 रुपए का एक है, मतलब आप 2500 में खरीदोगे तो आपको 1250 शेयर्स मिलेंगे और वो 2500 रुपीज 5000 के हो जाएंगे 1 महीने के अंदर, ऐसा लगता है। समझ गया चारों ऑप्शंस? अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करो, सबको लिखना जरूरी है। लास्ट में भी विल आस्क किसके पास क्या बचा और किसने क्या किया। एवरीबडी मस्ट राइट। नहीं समझे तो प्लीज पूछना। नहीं समझ रहा? I guess your people should help you. In case of any doubt, please let me know. सबने सेकंड स्लाइड का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है? किसी को कोई हेल्प चाहिए? स्टॉक नहीं समझा? अभी इंक्रीज हुआ नहीं है, वो 1 महीने बाद होगा। Are you getting this point? अभी तो हम खरीद रहे हैं। To be precise, हो सकता है। मार्केट्स है, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रहती है, राइट? सो ये जरूरी नहीं है होगा। आपके पास में ऑप्शन है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे और अगर हो जाता है तो आपका बेनिफिट, बट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और अगर से नहीं होता है तो दैट माइट ऑल्सो इन केस आपको इनकर हो सकता है लॉस। ठीक है, क्लियर? सबको समझ गया? सबने अपने अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, बाद में चेंज नहीं करना कट पिट करके। फाइन, शैल वी मूव अहेड? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, कांग्रेचुलेशंस, जो शेयर्स हमने खरीदे थे 2 रुपए में एक शेयर, वो डबल होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो डबल हो गए। कितने लोगों ने खरीदे थे? ओ, ये मैं बुक चेक करूंगी कितने लोगों ने खरीदे थे, किसने कट पिट करके चेंज किया। ओके फाइन, क्लैप फॉर योरसेल्फ। सो अब आपको क्या करना है,
जिन्होंने नहीं खरीदे उनने तो जो किया वो कर दिया, लेकिन जिन्होंने खरीदे उनके पास अब 5,000 रुपीज एडिशनल आ गया है। ये समझा? किसने नहीं खरीदे? हाँ, कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बार मौके देती है। क्लियर? शैल वी मूव अहेड? नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। अब ये तीसरा महीना और आपके पास है 10,000 रुपए। आई रिपीट, अब आपके पास है 10,000 रुपए। हाँ, सेकेंड मंथ में जिन्होंने पहले स्लाइड में खरीद लिया था, अब उनके पास नेक्स्ट मंथ में 5,000 बच गए हैं। क्लियर? आप ना एक्सक्यूज मी, यहाँ से ना स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो लास्ट के रोज ही आप ऑक्यूपाई करें। वॉलंटियर्स कहाँ है? यहाँ से ना स्क्रीन में नॉट बी क्लियरली विजिबल, सो आस्क देम टू ऑक्यूपाई द लास्ट रोज। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट मंथ and we have 10,000 rupees. 10,000 से अब हम क्या करने वाले हैं उसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एक प्ले स्टेशन। आप सबको मालूम है ना, वीडियो गेम वाला प्ले स्टेशन आता है। किसके पास में है? ओके, जिनके पास नहीं है ना, आपके पास एक खरीदने का ऑप्शन है कि 10,000 रुपए में आप अपना प्ले स्टेशन खरीद लो, जो आपके हर फ्रेंड के पास होता है। दूसरा, आप एक स्मार्ट वॉच खरीद सकते हैं 10,000 rupees में। Everybody wants to look smart, so we want a smart watch. So that is available at 10,000 rupees. Again, mutual fund का भी option है. You can buy a mutual fund for 10,000 rupees. And the last, फिर से एक ऐसा शेयर अवेलेबल है जो अब एक महीने में ट्रिपल हो सकता है। मतलब 1 रुपए का 3 रुपए हो सकता है, तो 10,000 के 30,000 हो सकते हैं। ओके? Is the same share? No, this is a different share. This can be same share and this can be a different share. वो सेम कंपनी भी हो सकती है, दूसरी कंपनी भी हो सकती है, तो सेम कंपनी मान के कर लो। नहीं, आपको हाफ नहीं करना है, आपको 10,000 में से एक ही काम करना है। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ 4 ऑप्शंस। या तो आप एक प्ले स्टेशन खरीद लो, गेम दैट यू वांट टू प्ले। सेकेंड ऑप्शन इज आप एक स्मार्ट वॉच खरीद लो, जो आपके हर फ्रेंड के पास में है, आपके पास नहीं। दूसरा, आप वापस म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो 10,000 रुपए के। एंड थर्ड, यू हैव एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन द सेम शेयर्स, बट दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो ट्रिपल, तो 10,000 का हो जाएगा 30,000। हुआ तो ऑब्वियसली डाउट है? इफ दिस इज डन ना, तो वी कैन इवन शिफ्ट ऑन द रोज हियर। जिन्होंने पिछली बार 5,000 वो स्टॉक से कमाए थे ना डबल, वो चाहे तो इस बार वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके पास 5,000 एक्स्ट्रा है जिन्होंने डाला था। ठीक है, सबने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है? यस, ऑल दोज हु हैव जस्ट जॉइंड दे कैन आस्क। ये कौन सी स्कूल से आए हैं? व्हिच ईरा? हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल्स। एंड ये अच्छा, ये सब ओके। Have you ever exercised your option? Okay, those who have joined अभी, we are playing a game here, जहाँ पे हर महीने इनको कुछ पैसे दिए गए और इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। So आप सबने ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिया? कितने लोगों में शेयर्स ने इन्वेस्ट किया है? मैं इसलिए पहले पूछ रही हूँ कि बाद में जब प्रॉफिट होता है ना, तो बहुत सारे लोग खड़े करते हैं। ओके, शैल वी सी द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? ऑल सेट? यस, अमन डिक्रीजिंग एसिड्स में डाला। ओ, आपके पैसे डूब गए। जिन्होंने पहले हाथ खड़ा किया था
चुके हैं। अब बजाओ ताली। किस किस के डूबे? सबने खरीदे थे। ओके, सो नाउ एट द एंड आई जस्ट वांट टू नो, जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट म्यूचुअल फंड की ली, हमारे पास 3 स्लाइड थी ना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में म्यूचुअल फंड लिया था 5000 का, उनका म्यूचुअल फंड अब हो गया है 8000। जिन्होंने सेकेंड टाइम 2500 का म्यूचुअल फंड लिया था, अब वो हो गया है 4000। एंड जिन्होंने थर्ड टाइम में म्यूचुअल फंड लिया था, अब वो हो गया है 11000। तीनों लिया। और जैकेट क्या पहनेगा? ठंडी में जैकेट भी तो हो ना, जैकेट ठीक है आपके पास। ओके, कमिंग टू द पॉइंट हियर, अब हम ये समझना चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज से हमने क्या सीखा। कौन बताएगा उन्होंने क्या सीखा? ओके, वहां पे आपका नाम बताओ, पहले स्कूल बताओ और आपने क्या सीखा। My name is Animesh Shukla and I am from Narayana Vidyalayam School. I learned that always the shares can't go up. Always do not spend your money on shares. They can go down. ओके, आप भी कुछ ऐड ऑन करना? I want to say that past savings are future earnings. So if you want to take risk, take at your risk. But savings, according to me, savings are more important than risk. Shruti Nandanwar from Narayana Vidyalaya. और यहाँ से कोई? अच्छा, आप लोग लेट ज्वाइन की, विल ऐड ऑन सुनो। फ्रंट रो से, हाँ, अच्छा बताओ, आपने दूसरी बार भी शेयर्स खरीदे थे ना? हाँ ना? स्कूल का नाम? स्कूल का नाम आपका? GH National Public School, and I think that think and invest, and also take a suggestion from the specialist. Like us. Okay, we want from girls also something. यहाँ पे किसने यहाँ पे पैसे बचाए? किसके पैसे बचे? जैकेट किसने खरीदा? जैकेट कितनों ने खरीदा? Okay, very good. You have to spend money on your needs also. हमें ऐसा नहीं करना है कि जो पैसे से बचाए जो और आज के लिए हम करो ही ना। जरूरत की चीज खरीदनी पड़ती भी है। I told you that it's a winter season, you don't have a jacket and there's a jacket available. तो विंटर सीजन में जैकेट खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि ठंड में जो चीज, आप बीमार हो तो आप दवाई खरीदोगे कि आप म्यूचुअल फंड में डालोगे? दवाई खरीदोगे ना, तो जो चीज जरूरत की है वो खरीदनी पड़ती है। ओके, वन लेसन। सेकेंड लेसन, इन्वेस्टमेंट, जैसे उन्होंने बताया कि रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में सिर्फ यहाँ वहाँ से जो टिप्स मिलती है कि पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, एक बार होगा, किसी और का भी हुआ होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर बार हो। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करो। किसने पैसे का कुछ नहीं किया, होल्ड करके रखे? ये भी गलत है। यू हैव टू डू समथिंग विथ योर मनी, एटलीस्ट इन्वेस्ट। आपके पिगी बैंक में पड़ा पैसा, इवन योर सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा ग्रो नहीं होता। इन्फ्लेशन पता है ना आपको? इन्फ्लेशन की वजह से पैसों की कीमत घटती है। तो अगर आपने रखे रहे पैसे तो आपने वैसे ही नुकसान कर दिया। आज आप जो 100 रुपए में काम कर सकते हो, आज से 1 साल बाद 100 रुपए की कीमत उतनी नहीं बचेगी। आपको मालूम है टमेटोज आर सो एक्सपेंसिव? क्या मालूम? आप जाते हो सब्जी लेने? यस। Okay, so the moral of the entire session is, first you must know how wisely to spend your money. लेकिन अपनी इच्छाओं को मत मारो। अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है तो wait for discounts, wait for offers, and just don't buy something because your friends have it. आपको कोई चीज खुद चाहिए इसलिए आप लो। आपको जैकेट की जरूरत थी तो आप खरीदो,
लेकिन आप वॉच इसलिए मत खरीदो क्योंकि आपके फ्रेंड्स के पास भी है। गॉट दिस पॉइंट? फिर म्यूचुअल फंड एक कम रिस्क वाला ऑप्शन है, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं होता कि डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, लेकिन ये कंसिस्टेंट है। तो पूरा पैसा गवा देने से बेटर है कि हम कम से कम उसमें इन्वेस्ट करके डिसेंट रिटर्न कमा सकें। गॉट दिस पॉइंट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ नोट। जैसे हमने एक टेबल बनाया ना, उस तरीके से इफ यू गेट अ पॉकेट मनी, अगर नहीं मिलती तो आप रिक्वेस्ट करो आपकी पॉकेट मनी मिले, ताकि आपको समझे कि पैसों को मैनेज कैसे करते हैं। आपके कुछ मंथली एक्सपेंस होंगे, आपको स्टेशनरी लगती होगी, आपके बस का एक्सपेंस होगा, ऑटो एक्सपेंस होगा, व्हाटएवर। आपको फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी करने जाना होता है, बिकॉज दिस इज अ सोशल लाइफ, वी हैव टू सोशलाइज ऑल्सो। गॉट दिस पॉइंट? So did you all enjoy this first step? Yes? So I hope you took some wise lessons from this exercise, which you will continue to have it even when you grow. और आज बहुत अच्छा है कि हमने सिर्फ एक्सरसाइज से ही पैसे गवाए। कल जिस दिन सच में कमा के गवाओगे ना, तब पेन समझ में आएगा। Okay? So please don't get into all these schemes. Invest wisely, and as he rightly mentioned, take advice of your seniors, of professionals. Fine? So we conclude the first part of today's workshop. I will hand it over now to Pooja. Thank you so much. Thank you Premlata ma'am. I hope students बहुत अच्छा सेशन था आप लोगों के लिए अभी, and you had a great learning outcome from this. Yes? Yes. Did you enjoy the activity? Yes. Okay. All right. Let's proceed. In this activity, you learned that you need to have money to save for future, to understand what is the basic difference between needs and wants. Okay? You learned something about mutual funds, about where to invest and how to invest and so on. Alright? Okay. But do you have money as of now with you? Or can you earn money as of now at this stage? Yes or no? No. Okay? So basically, you get some amount as a pocket money from your parents or some amount as gift from your relatives. नानी हाउस जाते हैं तो पैसे मिलते हैं ना? Yes? Okay. Alright. How do you utilize this money? मम्मी को दे देते हैं? हाँ? मम्मी को दे देते हैं कि इसको अपने पास रखिए। Yes? ऐसा करते हैं? कहाँ रखते हैं फिर? खुद के पिगी बैंक में? मम्मी ले लेती है। ओके, सो इफ आई टेल दैट आपके पास अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ओके, वेयर यू कैन सेव दिस मनी एंड दिस मनी विल बी विथ यू एंड यू कैन यूटिलाइज दिस मनी एज एंड व्हेन यू नीड, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा हमारे लिए। यस? ओके, चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, डू यू नो व्हाट अ बैंक अकाउंट इज? हाँ, तो पता नहीं किस किस को पता है बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट सबको पता है बैंक अकाउंट क्या होता है। ओके, एट योर होम योर पेरेंट्स माइट बी हैविंग अ बैंक अकाउंट। ओके, ऑलराइट। अब बहुत सारी बैंक्स होती है, उसमें कहीं पर भी हम बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, ये तो एक जनरल आइडिया आप लोगों को पता है। ऑलराइट, डू यू नो व्हाट इज अ माइनर बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट ओपन फॉर द माइनर्स। ओके, ऑलराइट, किस किस को पता है? पता है। ओके, किस किस का माइनर बैंक अकाउंट है ऑलरेडी? ओके, अ फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, लेट अस डिस्कस व्हाट इज अ माइनर बैंक अकाउंट। ओके, so basically a minor bank account is a bank account opened by individual under the age of 18. So if you are under the age 18 or below, you can open a minor bank account with any bank, any XYZ bank. Okay, purpose क्या है? Basically we open this bank account, minor bank account, okay, so that you can save on your money, you can understand about money and also the banking transactions at a very early stage. Okay, so now as you said कि पैसे मम्मी रख लेती है, now you can ask your mother to open this bank account for you, okay, and now you can save your money here. All right? Okay, so basically who can open? So the eligibility is you have to be below the age of 18 to open this account. Okay, account will be opened by your parents
or your guardians on behalf of you. ओके तो कैसा होगा ना, इट विल बी काइंड ऑफ अ जॉइंट अकाउंट, ओके, जहां आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे ऑन देयर अथॉरिटी, वो आप लोगों के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करके देंगे. ओके, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम अनदर न्यू टर्मिनोलॉजीज हियर. बैंक अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं. ओके, एक होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट. ओके, मैं बैंक अकाउंट की बात कर रही हूँ. आप जब बड़े भी हो जाएंगे, ओके, तो हमेशा जब भी आप बैंक में जाएंगे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना है. ओके, सेविंग्स अकाउंट एक होता है और एक होता है करंट अकाउंट. ओके, तो सेविंग्स अकाउंट यू कैन ओपन, आई कैन ओपन, और पेरेंट्स आर हैविंग सेविंग्स अकाउंट. ओके, सो बेसिकली हमारे जैसे जो इंडिविजुअल्स है वी ओपन अ सेविंग्स अकाउंट. तो फिर करंट अकाउंट किस पर्पज के लिए होता है? इफ यू हैव अ बिजनेस, ओके, तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है आर डन अंडर द करंट अकाउंट. Okay, so basically if you have a company, if you have an organization, if you have a startup, if you have a little business of yours, okay, you will go and open a current account for the business. So for personal utilization, we will be opening an individual account by the name of savings account. Okay, so now if you go to the bank, you ask for a minor account to be opened for yourself, they will open a minor savings account for you. Okay, are we clear on this concept? So there are two types of accounts basically, savings account and current account. For us, savings account will be opened. So now you go to the bank, okay, they will open a savings minor account for you. Is this okay? Yes? Yes. Are we clear with the difference between savings account and current account? Current account is for business transactions. If you have a business, you go and open a current account. Okay? Alright? Let us understand some basic features of this minor account. First, you can save money. Basically, you can go and deposit money. So whatever money you have in cash, you go and deposit in the bank account. Okay. Next, you can withdraw this money as and when you need. Okay. You can go to the bank. You can withdraw this money as and when you need. Okay. Obviously, for example, they even issue a checkbook for you. Checkbook देखा है सबने? Yes. देखा है सबने checkbook क्या होती है? Check leaf देखा है? उसमें नाम लिखा होता है, sign करते हैं, amount लिखते हैं. Okay. So in this case, a checkbook will be given to you, but it has to be countersigned with by your parents or guardian. Okay, so yes, if you want to transfer some amount or withdraw some amount and you have a checkbook, you write rupees 2000 on it, it has to be signed by you and your parent as well. Okay, countersigned by you. Now, there is also an opportunity to earn some interest on this minor account. Okay, so now you are depositing this money into the bank. Let us say you have a pocket money, you have some piggy bank, and in there you have 5,000 rupees. Okay. 5,000 rupees will be as it is in your piggy bank today and from 6 months from today. Yes? But if you go and deposit this money into the minor account on this 5,000, you have an opportunity to earn extra interest on this. Okay? Interest differs from bank to bank. It may range from 6% to 8% on the amount you have deposited or amount you have in your minor account. Okay, so additional opportunity to earn interest is available for you in this minor account. Okay, so you have an option to earn extra money here. Okay, by way of securing this money. So basically, if money is in your piggy bank, it is 5,000, and if you go and deposit this in your minor account, you will earn 5,000 plus something. Let's say 500 on it. Okay, all right. Okay. ATM card. What is the full form of ATM? Yes? Automated teller machine. Wow, we have a great audience here. So yes, you are correct. When you open this account, you also get an ATM card. Okay, ATM card is to be used for withdrawal, for deposit. You have seen ATM machines? Okay, okay. You have seen बहुत सारे बैंक्स के बाहर या बहुत सारे जगह पे ATM मशीन्स, ATM कार्ड्स होते हैं, ATM बूथ्स होते हैं, where you can go, you can swipe your ATM card and withdraw money from there. Yes, okay. So yes, you get ATM card also, and you can use it wisely. Okay. Benefits.
As per you, what are the benefits you learned if you open, or what is your thinking that if I open this account, I can learn this or I can benefit from this account? Yes, anyone? Yes? Pass on the mic. My name is Lakshmi, and if the children which are below 18 open their minor accounts, so they will learn how to save money, how to spend their money, and means how to learn about money. Thank you so much. Please give a clap. My name is Abira Firad, and using minor accounts, the children will learn how to save money from a very young age. So when they grow up, they can know the importance of it, as well as and learn about the importance of banking. Very good. My name is Animesh Ingole, and if we open a minor account today, then we will have no struggle in the future with banking. Okay, wow. Good insight, yes. My name is Adya, and it can help in future education. Myself, Metaksha from Narayana Vidyalayam, and one benefit what I think of minor account is कि नानी के दिए हुए पैसे मम्मी नहीं छीनेगी. मम्मी को पासवर्ड मत देना. My name is Arisha from Heritage International School. I think that opening a minor account can be very beneficial as it helps us to learn the value of money and it helps us about the banking process. So when we actually grow older, we will not have any problems with it, and we can save our money and know the value of it. At a very young age, our parents can save some money for us for things like college funds. I really enjoyed your responses. Thank you so much for interacting with us. Yes, your money would be saved in this bank account, and you will learn banking at a very early stage. Thank you so much. It was a great session. I'll hand over the mic to our next speaker, Siaman Jain, and he'll again guide you with something. थैंक यू. पैसे बनाना है. अब रियल मुद्दे की बात करते हैं, है ना? चलो अपन ने टेक्निक तो सीख लिए, अब थोड़ा सा ये चीज करेंगे कि कैसे पैसे एक्चुअली बना सकते हैं हम लोग, राइट? उसके लिए पढ़ रहे हैं ना? प्लीज हेलो, ये अभी इंटरैक्टिव होने वाला है, तो प्लीज आई वांट कि आप आवाज निकालो. आप क्यों आए हो इधर? पैसे के बारे में सीखने के लिए. पैसे बनाने नहीं, इधर कुछ नहीं हो रहा वैसा, ठीक है? पैसे कैसे ग्रो करना है, हाउ टू बेसिकली मैनेज योर फंड्स, उसके लिए आए हैं, राइट? अपने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या सीखा आज? हाउ टू स्पेंड मनी वाइजली. परफेक्ट. सेकेंड एक्टिविटी में क्या सीखा? परफेक्ट. अब अपन ने फर्स्ट एक्टिविटी और सेकेंड एक्टिविटी को लिंक करते हैं. तो फर्स्ट एक्टिविटी में अपन लोग ने ये चीज सीख लिया कि यस, पैसे कैसे बचाते हैं, राइट? बच गए अपने पास में, वेट भी आ गया है, सब चीज आ गई, म्यूचुअल फंड में भी डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, बट तो भी अपने पास कुछ पैसे बच रहे थे, राइट? अब सेकेंड में ये चीज बता दिया है कि अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हो और अपने पास में हाथ में जेब में अगर कैश है या घर में कैश है, तो वो कैश ग्रो होगी क्या? एवरीवन, ग्रो होगी क्या? आपके ड्रॉअर में ऐसा होता है क्या कभी कि 100 रुपए डाला, 3 दिन बाद में निकल रहा है 200 रुपए निकल गए? ऐसी है क्या किसी के घर पे ड्रॉअर? तो प्लीज मुझे भी दीजिए, राइट? नहीं होता है.
अब जब आपको पता है वैसी कोई ड्रॉअर नहीं है, तो अपन को बाहर घूमना पड़ेगा वो ड्रॉअर को ढूंढने के लिए, राइट? वो ड्रॉअर का नाम आपके लिए है माइनर अकाउंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ड्रॉअर होती है, बस अपने घर में नहीं होती। कोई लोग है, आपको पता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों देता है? चलो बैंक की वर्किंग थोड़ा सा सीख लेते हैं। आपको बैंक इंटरेस्ट क्यों देता है? राइट? क्यों? लोन्स लोन्स आपको कैसे? लोन्स लेते हैं आपके पैसे से, उसके बाद में वो जो इंटरेस्ट चुकाते हैं उनके लोन पे, वो आपको पैसा मिलता है। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। व्हाट्स योर नेम? सहर्ष। अमेजिंग आंसर। सो डीपीएस सो यस, दिस एक छोटी सी लाइन के अंदर उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि बैंक्स कैसे कमाते हैं, बैंक्स आपको कैसे इंटरेस्ट देते हैं। सो बैंक्स क्या करते हैं? बैंक के पास पैसे तो होते नहीं है, राइट? अपन सब लोग क्या करते हैं? बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक में अकाउंट ओपन ऐसे ही करते हैं कि अपन को कुछ एक अमाउंट डालना पड़ता है। आप एक अमाउंट डाल देते हैं बैंक में, राइट? अब बैंक के पास में इतना पैसा आ जाता है, आप तो हर दिन जाके पैसे नहीं निकाल रहे बैंक से, राइट? अब बैंक के पास में अगर पैसा पड़ा हुआ है तो वो आइडल है। अगेन इट इज जस्ट लाइक अ ड्रॉअर। वो अगर ड्रॉअर में डाल दी बैंक ने तो बैंक कुछ अर्न नहीं करेगा, तो आप लोगों को कैसे देगा, राइट? तो तब क्या करता है कि बहुत सारे बिजनेस लोगों को या बहुत सारे इंडिविजुअल को लोन चाहिए रहता है कि यस अभी हमारे पास में इतना अमाउंट नहीं है, हमको घर खरीदना है, राइट? तो घर हम इंस्टॉलमेंट्स में आपको वापस लौटाते रहेंगे बैंक को। सो व्हाट दे डू इज कि बैंक चार्ज अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, से फॉर दैट मैटर 10%, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे 10% देते। तो ये जो 10% जा रहा है, ये क्या है? ये बैंक की इनकम हो रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं 100 रुपए दे रहा हूं, बट मेरे को कितना मिल रहा है? 110 रुपए मिल रहा है, ठीक है? अब ऐसा है कि आप लोगों ने बैंक को दिए थे पैसे, अब आपको भी बैंक को कुछ, यानी बैंक अगर आपको कुछ नहीं देगा तो आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे क्या? नहीं अकाउंट ओपन करेंगे, राइट? तो फिर क्या होता है? अब बैंक ने 10 रुपए ले लिया है इंटरेस्ट के तौर पे, बट अब व्हाट दे डू इज कि आपको वो 4 या 5% दे देगा वापस। सेविंग्स अकाउंट में 4% इंटरेस्ट मिलता है, राइट? तो आपने सेविंग्स अकाउंट में रखा, बैंक ने उसको यूटिलाइज कर लिया किसी को देके, उसका जो इंटरेस्ट आया, अब उसको 10 रुपए की कमाई हुई बैंक को, बैंक ने उसमें से 4% आपको दे दिया, तो बैंक की नेट कमाई कितनी होगी? 6%, ठीक है? अब ये होता है बैंक के लिए। अब आ जाते हैं वापस अपन एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो यस, पहले में आपने सेव कर लिया, दूसरे में आपने सीख लिया बैंक में रखना, बट क्या आपको लगता है बैंक में रखना इज अ वाइज ऑप्शन? हेलो, अरे इंटरैक्टिव है बाबा, क्यों? नो तो इतना अच्छे से चिल्ला के बोले, नो क्यों? व्हाई इट इज नॉट अ वाइज ऑप्शन? एक सेकेंड, हाँ, मेरे को पता है कि आप हमारे साथ पढ़ा सकते हैं 2 मिनट पर। अमेजिंग, अरे आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस यार, यस, एंड हिज नॉलेज। सो यस, नो, अरे 5-6 लोग आप साथ में बोले ना, नो सर। अरे झूठ मत बोलो, सब दिखता है, दिख रहा है। सो यस, व्हाई इट इज नॉट अ वाइज ऑप्शन? हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Yes, why it is a wise option? It is not a wise option. Because sometimes the bank, like when we deposit the money and then we want the money back, sometimes the bank may not have the money, so we can say that you lost our money. नहीं, it's not the case. थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो RBI गवर्न करता है सारे बैंक्स को, राइट? एंड उसमें एक बैंक के पास में एक मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रखना पड़ता है बैंक को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट वो डिपॉजिट कभी कैंसिल नहीं हो। एंड अगर वैसा भी होता है तो देन RBI कम्स इन एंड वो पूरे के पूरे चुका देते हैं, राइट? यस, It's not a wise option because we have to pay interest back. अच्छा, यस, ठीक है, यस। Keeping our money in the bank is not a wise option because there may be many hackings also. Because of the hacking systems, our money can get lost. Clearly, because बैंक का जो सिस्टम है that is like next level. आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर ये है
कि आप अगर सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं तो आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको पता है अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो कितना मिलता है? 6-7%। ठीक है, अच्छा चलो, हाँ, तो एक काम करते हैं, अपन ये अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन में रखते हैं कि यस बैंक में क्यों वाइज नहीं है, इसको अपन बाद में लेंगे। अब सेविंग से फिक्स डिपॉजिट की बात है तो उधर चालू करते हैं। कितने लोगों के घर पे फिक्स डिपॉजिट्स हैं? एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड। किन किन के घर पे एफडी है? एफडी सुनते हैं ना अपन लोग? ओ हेलो हेलो, एफडी मैम आपके यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट नहीं है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट प्लीज। यस, किन किन के घर पे एफडी? अरे हाथ अच्छे से उठाओ ना, डर क्यों रहे? एफडी है बाबा, राइट। एफडी, एफडी क्यों करते हैं अपन लोग? एफडी क्यों करते हैं? फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर में अपन को ज्यादा मिल जाए। दूसरा इमरजेंसी, सेफ रहेंगे। अच्छा ऐसी अंगड़ाई ले रहे थे, सॉरी। हाँ ओके, सो ठीक है। और सेफ्टी, सेफ्टी एक हो गया, दूसरा हो गया अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तीसरा हो गया इंटरेस्ट। इस चीज के अलावा और कुछ नहीं है ना? चलो तो तीनों चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सेफ्टी। क्या आप लोगों को आइडिया है आपका एफडी का अकाउंट सेफ नहीं है पैसा? ओह सर, हमारे यहाँ पे तो वही बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा ने तो वही करके रखे हैं, हमारी एजुकेशन, हमारी ट्रिप तो उस पर निर्भर है ना? आज आप घर जाके जिन जिन के यहाँ पे भी एफडी है, आप सिर्फ एफडी का सर्टिफिकेट लीजिए एंड उसके पीछे पलटाइए। कोई भी एफडी अप टू पर पर्सन, पर अकाउंट, पर पैन, बेसिकली बैंक सिर्फ और सिर्फ गारंटी करता है 5 लाख रुपीस। तो अगर आपकी 10 लाख की भी एफडी है तो भी 5 लाख ही गारंटी करेगा। और ये 5 लाख की भी लिमिट अभी 2 साल 3 साल पहले आई है, उसके पहले सिर्फ 1 लाख रुपए थे। तो आप अगर 20 लाख की भी एफडी कर रहे हैं तो भी आपकी 5 लाख की ही बैंक गारंटी लेता है। अगर बैंक इन सर्टेन केसेस, अगर बैंक बंद हो जाता है या कुछ हो जाता है तो सिर्फ मैक्सिमम सिर्फ 5 लाख रुपीस तक के ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलने वाला। एंड बीच में जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया है मैम वगैरह, आपको पता है कोविड के दौरान 1-2 बैंक में इश्यूज आ गए थे, जब महीने भर तक लाइन लगी थी, लोग रो रहे थे कि हमारे घर पे शादी है बट आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको सिर्फ उतना ही अमाउंट मिला था। सो वी हैव सीन इन जस्ट नियर फ्यूचर, ऐसा भी नहीं कि अपन 20, 25, 30 साल पहले की बात करें। चलो आ जाते हैं, तो एफडी का सिक्योरिटी तो खत्म हो गया। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट मिलता है इसलिए अपन रखते हैं। इंटरेस्ट कितना मिलता है आपने बताया था? 6 to 7%, राइट। आप लोगों को पता है इन्फ्लेशन नामक एक चीज रहती है जो अभी जस्ट डिस्कस किए थे। व्हाट इज इन्फ्लेशन? पैसों की कीमत गिरना। परफेक्ट, ठीक है। आज का 1 रुपए कल का 1 रुपए नहीं रहेगा, कल के 1 रुपए से कम रहेगा। आज अपन अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं, कल वो 105 या 110 रुपए में खरीदेंगे। ये जो 10 रुपए है दैट इज इन्फ्लेशन। राइज ऑफ कैपिटल, आप भी देख रहे हैं ना, एक्सपेंस आपको भी पड़ता है। पानी पूरी पहले 10 रुपए की आती थी, अब 20 रुपए की आ रही है। और वो सेम ही दे रहे हो, 5 का 5 ही दे रहे हैं, बट वो 20 रुपीज 10 रुपीज हाइक हो गई। सो दिस इज इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन कितना परसेंटेज है, किसी को आइडिया? इन्फ्लेशन तो समझ में आ गया, यस? 7। इट्स नॉट 7, इट्स 4.5% अभी, राइट। अब आप ये चीज समझिए, आपका एफडी कितना है? 6%, 4% इन्फ्लेशन ने खा गया, बचता कितना परसेंट? 2%। 2% के लिए अपन सिक्योरिटी सोच रहे थे। अच्छा बाकी लोगों को आइडिया नहीं है, बट अबाउट एक और कंसेप्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देता हूं टू गिव अ क्लियर पिक्चर, दैट इज नोन एज TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो गवर्नमेंट अपनी एक और चीज कर लेती है कि भैया तुमने कमाया है, हमने मान लिया, तुमने एफडी में डाला, तुमने कमा लिया, तो जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा उस पे भी आपको हमको टैक्स देना है। उसका TDS है, वो TDS भी कट के आएगा। सो नेट इफेक्ट में आप लोग जितना डाल रहे हो ना, आपको उतना ही मिल रहा है पैसा। और इस चीज के लिए आप एफडी कर रहे हो और आप खुश हो। आप खुश हो? आप खुश हो ना? आप सच में खुश हो? अब नहीं हो, ठीक है, ओके। सो चलिए, अब एफडी के जो बात कर लिया, एफडी खराब है ये आपने खुद ने ही मेरे को बता दिया। अब अपन दूसरी और बहुत अच्छी बात पे आएंगे, बहुत अच्छी बात पे, एंड दैट इज LIC, जीवन के साथ भी। अरे बाप, सबको इतना अच्छा। अब
चलो FD तो छोटी चीज है यार, कौन सोचता है। कितने लोग हैं जिनके घर पे LIC? चलो हाथ खड़ा करो प्लीज। सर अब इस पे तो आप बोल ही नहीं सकते सर, कैसे बोलेंगे? क्यों बोलेंगे सर? ये तो गवर्नमेंट भी प्रचार कर रही है, 60 साल 70 साल से LIC चल रही है, हर एक चीज, हर एक जन के घर पे कितने खुश है सब लोग। देखिए इतना स्माइल की नहीं यार, ये चीज मेरे घर पे भी है, मेरे यहाँ पे भी टिक मार्क हो गया। चलो हैंड्स डाउन। अब आप बताइए, अब सबके घर पे है LIC क्यों लिए? Why LIC? चलो बता। अरे बाबा सबके हाथ उठे थे। या फॉर लाइफ इंश्योरेंस, सर बेसिक चीज है, कैसी बातें करेंगे? यस, इमरजेंसी केसेस, दैट इज इंश्योरेंस, राइट? दैट इज इंश्योरेंस, बेसिकली वही सेम चीज आपने बोला है, राइट? और कोई सर आपका LIC है, क्यों है? It's not for the children profit, but when I get money, we'll have. Yes, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलेगा ना सर। सो LIC का फंडा ये है कि आप 5, 10, 15 साल डालिए, अगर उसके दौरान कुछ हो जाता है, से इमरजेंसी कुछ क्राइसिस हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा पैसा जो भी सम इंश्योर्ड रहेगा वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट एंड वो करना चाहिए, दैट इज द बॉटम लाइन। उसके बाद में कुछ नहीं, राइट? बट एट द सेम टाइम अगर से कुछ नहीं होता है हमको 15 से 20 साल, तो सर वो पैसा गया क्या? नहीं गया नहीं है। एक सम इंश्योर्ड प्लस बोनस अमाउंट कुछ तो भी जो रहता है वो आपको पूरा वेस्ट हो जाता है एंड वो मिलता है, दैट इज चंक, अच्छा बड़ा चंक रहता है, राइट? और इसके अलावा और कुछ? तो सर ने तो परफेक्ट दे दिया कि भैया एक इंश्योरेंस तो है एंड एक आ गया आपका इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा और कोई? बस यही 2 चीज है, यही 2 चीज थी। अब अपन लोग LIC के बारे में थोड़ा बात करेंगे। FD में आप कितना कमा रहे थे? नेट 2% कमा रहे थे, 1 या 2%। ये भी अपन TDS को छोड़ के की बात कर रहे थे। TDS को लेते तो 1-1.5% आता है। अब LIC में, FD में तो आप कमा लिए 1%, LIC में कितना कमा रहे हैं नेट? 10%। और अच्छा, व्हाट इफ आई टेल यू कि FD में तो आप कमा रहे थे, LIC में आप लॉस कर रहे हो? क्या बोल रहे सर? ऐसी बातें बोल रहे हैं आप, गंदा लग रहा है हमको। To be really very clear and very factful, LIC जितनी बड़ी पॉलिसी से 15 साल 20 साल की भी पॉलिसी लेते हैं बहुत लोग, हर साल कुछ डालते हैं। LIC जितनी बड़ी पॉलिसी उतना नेगेटिव रिटर्न, एंड इट स्टार्ट्स विद -1.25%। हो अभी आप इधर बैठे हो ना, आपका लॉस चालू है और क्या बात कर दी है, वाह पैक खुल गया, अरे बाप रे। यस, अब क्यों वो चीज पे? अच्छा थोड़ा सा है ना, आई वांट टू डिस्क्लोज सर्टेन प्रैक्टिसेस। सबसे पहले आप मेरे को बताइए, LIC किसका है? गवर्नमेंट का है, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स बीन सिंस कितने साल? मोर देन 60-70 इयर्स, राइट? आप मेरे को एक बात बताइए, LIC बना क्यों? थोड़ा पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेशलाइज ऑन एनी पॉलिटिक्स, बट यस, गवर्नमेंट एज सच, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनने क्यों बनाई LIC पॉलिसी? यस, LIC क्यों बना? टैक्सेस क्या आएंगे LIC? वो नहीं, ऐसा नहीं है बाबा। हाँ, यस, फॉर नीड्स ऑफ पीपल की। यस, इंश्योरेंस कर लिए तो एटलीस्ट वो सेफ्टी हो जाए उनको, राइट? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। चलो ठीक है, अभी ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ द टाइम मैं डायरेक्ट फैक्ट्स पे आता हूँ। सबसे पहला, LIC का वन ऑफ द रोल इज कि यस, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट इंश्योरेंस, कि यस, लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीरियसली ले एंड फैमिली के लिए कुछ एक अच्छा चंक छोड़ के जाए, दैट इज क्लियर। बट यू नो फर्स्ट रीजन क्या है? एंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट फिगर्स। हर साल कोई भी गवर्नमेंट रहे सेंट्रल पे, वो एक एम्प्लॉयमेंट नंबर्स निकालती है कि हमने इतने लोगों को एम्प्लॉय किया, हमारी गवर्नमेंट ने इतने लोगों को एम्प्लॉय किया।
मेजॉरिटी उसमें जो अमाउंट रहता है ना, दैट इज LIC एजेंट्स का। सबसे मेजॉरिटी अमाउंट जो रहता है कि ये अगर से गवर्नमेंट ने 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी तो उसमें से 4 से 5 लाख लोग LIC एजेंट बनेंगे। वो एजेंट बन गए, यानी गवर्नमेंट डिफाइन कर देती कि हमने इनको एम्प्लॉय कर दिया, खत्म। अब आ जाते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस। अब नेगेटिव क्यों है, सबसे पहले वो बात करते हैं। कोई भी LIC एजेंट होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स डिस्क्लोज कर रहा हूँ। LIC एजेंट काम बहुत करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, ऑल रिस्पेक्ट फॉर देम। बट अगर से आप 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं LIC में, राइट, आपने पॉलिसी ली साल का ₹1,00,000 की, एंड 1 लाख रुपीस आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको आइडिया है कितना एजेंट्स को मिलता है एंड कितना आपका इन्वेस्ट होता है? 5,000 एजेंट्स को मिलता है, सो 5% आप बोल रहे हो, 5%, 25%। आप साल ₹1,00,000 डाल रहे हैं, आपको 25,000 एजेंट को मिल जाएगा। और कोई बिल्ड चालू है सर, 5 से 25 हो गया है। What if I say you it's from 35 to 40%? अब आप ये चीज समझिए कि अब जब आप फर्स्ट चेक लिखते हैं LIC का कि 1 लाख रुपीस हमारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका 35% तो एजेंट को चले जा रहा है, तो बचता कितना है? 1 लाख में से 35 माइनस कर देंगे तो 35,000, 65,000। अब आप जब चालू ही 65,000 पे कर रहे हो तो आपको 1 लाख आने में कल हो जाएगा क्या? 5 से 6 साल मिनिमम लगेंगे। इस चीज के लिए LIC में अगर आप पैसा डालते हो 5 साल तक मिनिमम लॉक इन रहता है, और 5 साल के बाद में अब जब निकालोगे तब आपको सिर्फ आपका अमाउंट मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। LIC कैसे कमाता है वो थोड़ा सा आइडिया ले लो एंड देन वील क्लोज। सो सॉरी सर बट 2-3 मिनट्स, राइट? यस, LIC कैसे पैसे कमाता है? अब बैंक तो आपने सीख लिया, LIC कैसे कमाता है? सब लोग ने डाले हैं पैसा, आप ये तो सोचना चाहिए वो कैसे कमा रहे हैं? थ्रू टैक्सेस। टैक्सेस नहीं है, वो गवर्नमेंट का लग गया। देखो, बैंक का रोल इज टू प्रोवाइड लोन्स, LIC का रोल इज नॉट टू प्रोवाइड लोन्स, ठीक है? तो LIC, सॉरी बट खत्म, फिनिश करते हैं। LIC अर्न्स कैसे? LIC कुछ नहीं करता है, वो अपना जो रुपए है वो स्टॉक मार्केट में लगाता है, वो म्यूचुअल फंड्स में लगाता है। अब आप मेरे को बताइए, जहां पर आप जहां दे रहे हैं उसके बाद में म्यूचुअल फंड्स में ही जा रहा है पैसा, और आप 35% उसको दे रहे हैं, सो व्हाई नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट देयर? Why not directly invest there? Right? So yes, obviously abruptly end कर रहे हैं just due to थोड़ा सा time constraint. I'm so sorry, but yes, आप ये चीज समझिए कि अगर LIC लेना है तो LIC नहीं, आप सिर्फ लिख लीजिए, आप अपने घर पे भी सिर्फ सर्च करने बोलते हैं ना, opt for term plan. टर्म प्लान ले लीजिए, LIC का मत लीजिए, टर्म प्लान ले लीजिए एंड साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करिए। सो अब जब आपने माइनर अकाउंट ओपन किया है, माइनर अकाउंट में SIP होता है, वो चालू कर दीजिए, उधर से आप अर्न करेंगे, राइट? ओके, हेलो, समझता? थोड़े से फैक्ट्स फिगर्स क्लियर हुए, थोड़ा वाव फैक्टर आ गया, थोड़ा डिप्रेसिंग फैक्टर आ गया। आई होप घर जाके थोड़ा सा आप रिवाइज करें एंड जो सीनियर्स हैं वो प्लीज थोड़ा सा ऐड करिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। So thank you very much. Big round of applause for all speakers. और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो स्पीकर्स यहीं पर हैं, इसी प्रीमाइसेस पे हैं, थोड़ी देर के लिए आप आउटसाइड द हॉल से डिस्कशन कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।